Next, number 22. Atharvangi Rasamasi Sumantur Daruno Munihi Itihasa Purananam Pitamero Maharshanaha. Translation and purport by Srila Prabhupada. Sumantu Muni Angira, who was devotedly engaged, was entrusted with the Atharva Veda, and my father Romaharshana was entrusted with the Puranas and historical record. तो एक मुनि हुए अंगीरा, तो भक्ति में पूरे अथर्व वेद में पूरे वेलवर्स थे वो, और जो पिताजी हैं, तो किसके पिताजी हैं ये? व्यास थे प्रभु जी, प्रभु सूत गोस्वामी के, सूत गोस्वामी जी के नाम है, सूत गोस्वामी जी के पिता हैं रोमहर्षण। प्रभु जी नाम है रोमहर्षण सुता। His name is रोमहर्षण सुता। तो पूरी लीला है वो हम बताएंगे आपको, पूरी स्टोरी है। प्रभु जी ये सूत गोस्वामी जी के पिता थे? Yes, father of Sut Goswami. The father was entrusted with the Puranas and the historical record. तो फादर को पूरा पुराण का और सारी हिस्ट्री का सब कुछ पता था। In the Shruti mantras also it is stated that Angira Muni strictly follow the rigid principles of Atharva Vedas, was the leader of the followers of the Atharva Vedas. Angira Muni Atharva Ved ka leader. Text number 23. Ta eta rashyo vedam swam swam vyasan anekadha shishai prashi shaistat shishair Vedaste Sakhino Abhavan. Translation and purport by Srila Prabhupada. All these learned scholars in their turn rendered their entrusted Vedas unto their many disciples, grand disciples, and great grand disciples, and thus the respective branches of the followers of the Vedas came into being. तो ये सारे लर्नड स्कॉलर्स हैं, वो जो वेदों को अपने शिष्यों को, ग्रैंड शिष्यों को, ग्रेट ग्रैंड शिष्यों को दे रहे हैं, और जो उनके रिस्पेक्टिव ब्रांचेस हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं वेदास के, वो एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं। In that way the Vedas are entrusted to the followers. Who will read today? Kiran Sharma ji. किरण शर्मा माता जी, आप रीड करेंगे? किसने रीड नहीं? आज नहीं प्रभु जी, सॉरी। ओके, कौन रीड करेगा? खुशबू अरोड़ा माता जी, खुशबू अरोड़ा, आप रीड करेंगे? कौन रीड करेगा? मैं पढ़ूं? यस, बिंदु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। The original source of knowledge is the Vedas. There are no branches of knowledge, either mundane or transcendental, which do not belong to the original text of the Vedas. They have simply been developed into different branches. They were originally rendered by great, respectable, and learned professors. In other words, the Vedic knowledge, broken into different branches by different disciplic succession, has been distributed all over the world
No one therefore can claim independent knowledge beyond the Vedas. Hare Krishna. Hare Krishna. The original source of knowledge is the Vedas. तो सारे जो ज्ञान का स्रोत है वो वेद हैं. So there are no branches of knowledge, either mundane or transcendental, who do not belong to the original text of the Vedas. तो कोई ऐसी ब्रांचेस नहीं है जो वेद से नहीं आ रहा, तो वो ज्ञान ही नहीं है. वो ना तो भौतिक ना आध्यात्मिक. जो भी ज्ञान आना है वो वेदों से आना है, क्योंकि वेदा मीन्स नॉलेज. वेद का मतलब है ज्ञान. They have simply been developed into different branches. They were originally rendered by great, respectable, learned professors. In other words, the Vedic knowledge broken into different branches by different disciplic successions has been distributed all over the world. तो ये जो सारा ज्ञान है अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग परंपराज में डिवाइड होकर पूरे विश्व में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है. No one therefore can claim the independent knowledge beyond the Vedas. वेदास के परे कोई ज्ञान नहीं है. सारा जो ज्ञान है मंडेन, फिजिकल, केमिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, all knowledge is coming in the Vedas. Everything is there in the Vedas. Nothing is beyond the Vedas. और वेदास का पर्पस क्या है? Knowledge, giving knowledge, Prabhuji, to all four. To know the Krishna. हाँ, तो कौन सा श्लोक है ये प्रभा जी? प्रभु जी इस समय तो दिमाग में नहीं आ रहा है वेदों का. कौन बताएगा? ये जो प्रभा जी ने आंसर टिक दिया इसका श्लोक कौन सा है? प्रभु जी ये शायद व्हाट इज द श्लोका? प्रभु जी तो वो बता रहे हैं अपने उसमें कि मैं वेदों में साम वेद हूँ, ये सब ये तो नहीं है. प्रभु जी जो मुझे जानता है वह मेरे योग दो धाम को. श्लोक पूछ रहे हैं. श्लोक सार तो यही है ना प्रभु जी, आई थिंक. सार तो उन्होंने बता दिया ऑलरेडी. जी. श्लोका क्या है? श्लोक इज वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः. वेदांत गीता का है क्या प्रभु जी? गीता का? हाँ. वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यः. सारे वेदास को पढ़ के समझ के क्या क्या करना है? कृष्ण को समझना है. और तुमने कृष्ण को नहीं समझा तो सारा श्रम एव ही केवलम, सारा कुछ लेबर वेस्ट ऑफ टाइम हो गया. सब कुछ है, कुछ भी फायदा नहीं हुआ. इसलिए वेद को हम पढ़ रहे हैं तो वो कृष्ण को समझने के लिए सारा रीडिंग हो रही है, स्टडी हो रही है. अदरवाइज सिंपली हाँ प्रभु जी ये है तो सर्वस्य चाहम हृदय वाले का सेकंड पार्ट है ये. यस. वेदेश सर्वे नाम देव वेदो वेदांत कृत देवी देव चाहम. वेदांत का संकलन करता मैं ही हूँ और वेदों को जानने वाला मैं ही हूँ. यही है ना? यस. टेक्स्ट नंबर 24. बाबा जी किस में से निकालते हो आप श्लोक एकदम से? पहले पढ़ा होता है ना प्रभु जी. कितना भी पढ़ लो हम तो नहीं निकाल सकते इतनी जल्दी से. कोई बुक है स्पेशली कुछ वेदों? प्रभु जी ये कौन से चैप्टर और कौन सा श्लोक है? ये 15 का 15 है. 15 का जन्म 15. लगेंगे, पूरा एक जन्म लगेगा और अभी प्रभु जी 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है. बार बार पढ़ते रहोगे तो ये दिमाग में आ जाएगा सब प्रभु कुछ. जी आप तो कह रहे थे इम्पोर्टेंट श्लोक्स भी हैं वो. हाँ, वो भी हम आपको डाल देते हैं. प्रभु जी ने ये पहले चैप्टर में पूछा था. पहले चैप्टर में भी इसको रिसाइट किया गया था. यस. यस. सो थर्ड चैप्टर में भी था ये श्लोक. यस. तो इसमें आगे हम बढ़ते हैं, आगे और चलते हैं. टेक्स्ट नंबर 24. अगर हम ऐसे रीड जस्ट रीड माय बुक्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन करके ये पूरा एसिमिलेट हो जाएगा सारा नॉलेज. सारा फिर सब कुछ याद हो जाएगा. थ एव वेदा धुर्मेधैर् धार्यन्ते पुरुषैर् यथा एवं चकारा भगवान व्यासा कृपणः वत्सलः.
Translation and purport by Srila Prabhupada. Thus the great sage Vyasadeva, who is very kind to the ignorant masses, edited the Vedas so they might be assimilated by less intellectual men. जो व्यासदेव जो हैं बहुत he is very kind hearted to the ignorant masses. He edited the Vedas so they might be assimilated by the less intellectual man. Editing किया है कौन कर रहा है एडिटिंग? व्यासदेव कर रहे हैं। व्यासदेव कौन है? कृष्ण है। कृष्ण खुद ही एडिटिंग कर रहे हैं। किसके लिए? लेस इंटेलेक्चुअल, क्योंकि सारे लोग इसको नहीं पढ़ पाएंगे तो थोड़ा एडिटिंग कर रहे हैं। यस बिंदु दे माता जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन इसमें है, मैं पढ़ने से पहले पूछ लूं। बताइए। इसका मतलब एट द एंड ऑफ ईच द्वापर युगा जो होता है, वेदास आर एडिटेड एवरी टाइम बाय व्यासदेव जी? नॉट एवरी टाइम, नॉट एवरी टाइम। क्योंकि ये कैंटो 12 में ना, जिसमें महाराज परीक्षित पासेस अवे, इसमें ये पूरा दिया हुआ है सब कुछ। उसमें ना बार बार यही दिया हुआ है कि जो ये हमारे व्यास जी हैं वो कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी हैं, द्वैपायन बोलते हैं। और वो हर बार आते हैं जब भी ये मिलेनियम एक से दूसरे में जाता है तो आते हैं और वेद खो ना जाए, इसीलिए वो हर बार एडिट करते हैं। तो is it true or it is just one time phenomena? It is not like mandatory it has to be edited. There is no mention like that, but we can again check with Srila Prabhupada. हाँ, इसमें ना कैंटो 12 में चैप्टर 6 में थोड़ा मैं पढ़ रही थी क्योंकि कैंटोस रखे होते हैं मेरे पास, तो मैंने देखा उसमें ऐसे लिखा हुआ था तो मेरे को कंफ्यूजन हो रहा था। Anyway, what is written ki every end of Dwapar Yuga, हाँ उसमें लिखा हुआ, मैं पढ़ रही हूँ, ये श्लोका नंबर टेक्स्ट नंबर 46 है, कैंटो 12 चैप्टर 6। In this way, throughout the cycles of 4 ages, generation after generation of disciples, all firmly fixed in their spiritual vows, have received these Vedas by disciplic succession. At the end of each Dwapar Yuga, the Vedas are edited into separate divisions by eminent sages. और eminent sages में आगे जाके अगले श्लोक में फिर व्यासदेव जी का नाम है। तो ये लाइन है ना, at the end of each Dwapar Yuga, the Vedas are edited, क्योंकि उससे पहले और बाद में श्लोकों में ही लिखा है कि क्योंकि ये पता क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कलियुगा में मंद बुद्धि मंद भाग्य उपद्रिता। The people of Satyuga, Treta and Dwapar are intellectual, but this Kali-yuga people are not intellectual, less Mandabuddhi. So then, for that purpose, maybe some editing is there, or because less intelligent people are there. हाँ, बट मेरा क्वेश्चन है, इसका मतलब जैसे जैसे मिलेनियम हमारे जो प्रलय आते हैं 4 तरह के, और ऐसा प्रलय जब उसमें सब कुछ समा जाता है तो उस टाइम द्वापर युग का जब आता है उस टाइम हर बार ये एडिटेड होती होंगी वेदास क्या? After at the end of Dwapar Yuga, in all the Chaturयुगा, because Dwapar युग के बाद कलयुग स्टार्ट हो रहा है बिंदु देवा। ठीक है, तो कलयुग के लोग जो हैं बड़े वो डाउन ट्रोडन है, निम्न है, तो वो इतना हाई हाई क्लास वेदास नहीं समझ सकते, उनके लिए एडिटिंग हो रही है ना? हाँ, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। इसी प्रभु जी इसी श्लोक के परपट में इसका अर्थ है, इसी श्लोक के परपट में इसका अर्थ है, हम पढ़ते हैं। इसका अर्थ है, ठीक है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। The Veda is one, and the reasons for its divisions in many parts are explained herewith. The seed of all knowledge, or the Veda, is not a subject matter which can easily be understood by any ordinary man. There is a stricture that no one should try to learn the Vedas who is not qualified Brahmana. This stricture has been wrongly interpreted in so many ways. A class of men who claim Brahminical qualification simply by their birthright in the family of a Brahmana claim that the study of Vedas is a monopoly of Brahmana caste only. Another section of the people take this as an
injustice of members of other castes, which do not happen to take birth in a Brahmana family. But both of them are misguided. The Vedas are subjects which had to be explained even to Brahmaji by the Supreme Lord. Therefore, the subject matter is understood by persons with exceptional qualities of goodness. Persons who are in the modes of passion and ignorance are unable to understand the subject matter of the Vedas. The ultimate goal of Vedic knowledge is Sri Krishna, the personality of Godhead. This personality is very rarely understood by those who are in the modes of passion and ignorance. In the Satya Yuga, everyone was situated in the mode of goodness. Gradually, the mode of goodness declined during the Treta and Dwapar Yugas, and the general mass of people became corrupt. In the present age, the mode of goodness is almost nil, and so far the general mass of people, the kind-hearted, powerful powerful sage Srila Vyas divided the Vedas in various ways so that they may be practically followed by less intelligent persons in the mode of passion and ignorance. It is explained in the next shloka as follows. Hare Krishna. Krishna. So the Veda is one, and the reasons for its division are explained here. वेद तो एक ही है, बट क्यों डिवाइड किया जा रहा है उसका एक्सप्लेनेशन है। हाँ, तो क्योंकि सारे जो ज्ञान का जो बीज है वो वेद है ना, which can be easily understood by an ordinary man, which cannot, it's not a subject which can be, ordinary man इसको नहीं समझ सकता है। No one should try to learn the Vedas who is not a qualified Brahmana. The scripture has been wrongly interpreted in so many ways. A class of men who claim Brahminical qualifications simply by their birthright claim that study of Veda is a monopoly of Brahmin caste only. हम ब्राह्मण हैं, हम ही पढ़ सकते हैं वेद, और कोई नहीं पढ़ सकता, है ना। तो जो ब्राह्मण होता है वो सिर्फ बर्थ राइट से नहीं होता है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ब्राह्मण होता है कर्मों से, एक्शन से। What is your action? That will qualify you as a Brahmana, not as a birthright. कि मेरा बेटा भी ब्राह्मण हो गया, मेरा पिता ब्राह्मण हो गया, नॉट लाइक दैट। तो हमारी मोनोपली है, हम ही ब्राह्मण है और कोई ब्राह्मण नहीं है, हम ही वेद पढ़ सकते हैं। Another section of people take this as an injustice to the members of other caste who do not happen to take birth in the Brahmana family. But both of them are misguided. The Vedas are subject which had to be explained even to Brahmaji by the Supreme Lord. ये बड़ा स्पेशल सब्जेक्ट मैटर है, कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं। कैसे बताया उन्होंने? प्रभु जी दिल से, वाइब्रेशंस के थ्रू, हाँ, हार्ट के ऊपर जो हवा होती है ना, वो बड़ा क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है कि उसमें ऐसे सटल वाइब्रेशंस होती हैं और उस वाइब्रेशंस के थ्रू भगवान ने ब्रह्मा जी को ट्रांसफर किया। इसके फर्स्ट चैप्टर में है, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवये। तो भगवान कैसे मैसेज दे रहे हैं? हाँ, मुयंती सूर्य, तो हार्ट के अंदर वो सारा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, हार्ट के अंदर दे रहे हैं। It is he only who first imparted Vedic knowledge unto the heart of Brahma Ji, the first created being. तो भगवान क्या है, हृदय में सारा ज्ञान दे दिया ब्रह्मा जी को, हाँ, क्योंकि भगवान कहाँ बैठे हुए हैं? हृदय में ही बैठे हैं प्रभु जी। तो हृदय में दे दिया सारा ज्ञान, दिव्य ज्ञान, हृदय प्रकाशिता। जो दिव्य ज्ञान है ना, उसके लिए फिजिकल मीटिंग की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज से पूरी लाइफ टाइम में सिर्फ 4 से 5 बारी मिले थे बस, और 4-5 बारी मिलकर
ये उन्होंने पूरा इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस बना दिया। और मीटिंग कितना, 1 घंटा 2 घंटा मिले होंगे बस, 4-5। और तो व्हाट इज द कनेक्शन? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाश। स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो सारा इंटरनल कनेक्शन होता है, फिजिकल कनेक्शन की जरूरत नहीं है। That's what is happening to Brahmaji also. Therefore, the subject matter is understood by person with exceptional qualities of goodness. सत्वगुण चाहिए। Persons who are in the modes of passion, ignorance are unable to understand the subject matter of the Vedas. तो रजोगुण और तमोगुण में कोई आशा नहीं है, वो वेद नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वेद को कृष्ण को समझना है। So this personality very rarely understood कृष्ण को। इस जो रजोगुण तमोगुण में बहुत रेयरली कोई समझ पाता है। In सतयुग everyone is situated in the mode of goodness. तो वो सारा कुछ कम होता जा रहा है। सतयुग में 100% धर्म था, त्रेता युग में 75% रह गया, द्वापर युग में 50% रह गया, और कलयुग में 25% है, वो भी नहीं है। तो कलयुग में कौन सी क्वालिटी है ना? प्रभु जी तामसी 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 क्वालिटी है। कलयुग में जो है 4 प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन है, उसमें से एक प्रिंसिपल है ना? सत्य तप दया शौचम। ना देयर आर 4 प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, उसमें से एक बचा हुआ है। एक तो ऑस्टेरिटी है, एक मर्सी है, एक क्लीनिनेस है, और एक ट्रूथफुलनेस है। चारों में से कौन सा बचा हुआ है? प्रभु जी चलो 4 जरा बताइए। सत्य तपा दया शौचम। शौचम ही बचा है फिर तो। नहीं, शौचम नहीं बचा हुआ। प्रभु जी ऑस्टेरिटी ऑस्टेरिटी भी नहीं बची हुई है। चैरिटी तो नहीं है, सिर्फ सत्य बचा है थोड़ा सा। हाँ, सिर्फ सत्य बचा हुआ है थोड़ा सा, सिर्फ सत्य बचा है थोड़ा सा, वो पूरा नहीं बचा हुआ, थोड़ा सा। ट्रूथफुलनेस जो है थोड़ी सी बची हुई है, बाकी सारा कुछ खत्म हो गया है। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर इन कलियुगा। एवरीथिंग इज डिक्लाइनिंग। जनरल मास ऑफ पीपल बिकम करप्ट। द प्रेजेंट एज मोड ऑफ गुडनेस ऑलमोस्ट नील। सत्वगुण तो पूरा जीरो हो चुका है। For the general mass of people, the kind-hearted, powerful sage divide the Vedas in various ways. So they may be practically followed by the less intelligent person. क्योंकि सारा तो रजोगुण तमोगुण है कलियुग में, तो और कुछ है ही नहीं है। या तो पूरे तामसिक लोग हैं, या फिर राजसिक हैं, या दोनों का मिक्स है। उन लोगों के लिए एडिटिंग की जा रही है। उन लोगों के लिए एडिटिंग हो रहा है। प्रभु जी जो आपने बताया भी, ट्रूथफुलनेस, ऑस्टेरिटी, मर्सी और क्लीनिनेस। मर्सी क्लीनिनेस ऑस्टेरिटी खत्म हो गया पूरा। ओके, टेक्स्ट नंबर 25। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ध्यान से सुनना, ये क्विज में आएगा। इसको लेके तो बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है प्रभु जी आजकल रामचरितमानस में। चलिए हम एक्सप्लेन करते हैं इसका। स्त्री उसका अर्थ शूद्रा द्विज बंधूनाम त्रैन श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेद्यः इति भारतम आख्यानम कृपया मुनिना कृतम। टेक्स्ट नंबर 25, चैप्टर 4, translation. Out of compassion, the great sage thought it wise that this would enable men to achieve the ultimate goal of life. Thus, he compiled a great historical narration called the Mahabharata for women,
laborers and friends of the twice born. तो जो व्यासदेव है वो पूरे काइंड हार्टेड है, कृपालु है, सोच रहे हैं कि इट वुड इनेबल मैन टू अचीव द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो इसलिए वो महाभारत का जो इतिहास है उसका नरेशन कर रहे हैं। किसके लिए? इसके लिए इन तीन लोगों के लिए, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, वुमेन लेबरर्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द ट्राइस बॉर्न, इन लोगों के लिए वो हिस्टोरिकल महाभारत का हिस्टोरिकल नरेशन कर रहे हैं। यस बिंदुते माता जी। Hare Krishna Prabhu. Yes. The friends of the twice born families are those who are born in the families of Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, or the spiritually cultured families, but who themselves are not equal to their forefathers. Such descendants are not recognized as such for want of purificatory achievements. The purificatory activities begin even before the birth of the child, and the seed-giving reformatory process is called Garbhodana Samskara. One who has not undergone such Garbhodana Sanskara or spiritual family planning is not accepted as being of an actual twice-born family. The Garbhodana Sanskara is followed by another purification process, out of which the sacred thread ceremony is one. This is performed at the time of spiritual initiation. After this particular samskara, one is rightly called twice born. One birth is calculated during the seed giving sanskara, and the second birth is calculated at the time of spiritual initiation. One who has been able to undergo such important sanskara can be called a bona fide twice born. Hare और Krishna. पढ़ूँ आगे? Hare Krishna. The friends of the twice born families are those who are born in the families of Brahmanas, Kshatriyas, and Vaishyas, Dvijbandhu Nam, or the spiritually cultured families, but who themselves are not equal to their forefathers. Such descendants are not recognized as such for want of purificatory achievements. The purificatory activities begin even before the birth of a child, and the seed-giving reformatory process is called गर्भाधान संस्कारा। तो ये गर्भाधान संस्कार पता है आपको? जी प्रभु जी, जब जब वाइफ जब मतलब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उस समय अगर उसको ज्ञान दिया जाए तो वो बच्चे को पूरा रिसीव होता है, तो उस जन्म जो है वो अच्छे उसमें हो जाता है संस्कारों से। यस, तो इसमें क्या है कि जो जब मैरिज हुई है, हस्बैंड और वाइफ का यूनियन हो रहा है, तो ऑन दैट डे they should be fully spiritually surcharged, both of them. And Prabhupada even recommended that both husband and wife should chant 50 rounds of Hare Krishna mantra, so that that vibration will go to the child actually, and that vibration will go to the, and the child should come as a spiritual child. And the mother who is pregnant, she should be reading Krishna book and chant. So they should be fully in Krishna consciousness. So the vibration should go to the child. It's called the Garbhadan Sanskar. This Sanskar has to be followed. We should not produce the children like cats and dogs. तो इसको रिफॉर्मेटरी प्रोसेस बोलते हैं। इसको दशविध संस्कार, उसमें से एक संस्कार आता है, दिस कॉल्ड गर्भाधान संस्कार। One who has not undergone such Garbhadan sanskar or spiritual family planning is not accepted as being of an actual twice born family. तो वो जो है वो ग्रस्त आश्रम ही नहीं हुआ, फिर उसमें गर्भाधान संस्कार नहीं हो रहा है तो कौन सा क्या हुआ फिर? वो अगर ग्रस्त नहीं है तो
प्रभु जी फिर वो उसको इसमें जाना पड़ता है प्यूरिफैक्टरी प्रोसेस के अंदर जिसमें थ्रेड सेरेमनी मिलती है। नहीं नहीं, उसको उसको बोलते हैं गृह मेधी। इज नॉट ग्रस्ता, कॉल गृह मेधी, इज कॉल एनिमल लाइफ। The Garbhadan sanskar is followed by other purificatory processes, out of which the sacred thread ceremony is one. This is performed at the time of spiritual initiation. ये 2 तरह का दीक्षा दिया जाता है। कौन कौन सा? हरे कृष्ण प्रभु जी, एक तो ब्राह्मण दीक्षा और दूसरी हरिनाम दीक्षा। पहले जो फर्स्ट जो आती है वो हरि नाम दीक्षा है। इसमें क्या है, नाम जो है चेंज हो जाता है। जैसे अभी सुबोध अग्रवाल जी का क्या नाम पड़ गया? व्हाट इज द क्या नेम? पढ़ा है? आप बताइए, मैं क्यों बताऊं? व्हाट इज द नेम ऑफ सुबोध अग्रवाल? प्रभु जी नहीं पता। तो आपको कोई उनका स्पिरिचुअल नाम ही आपको पता नहीं, आप मटेरियलिस्टिक नाम बोलते जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हरिनाम दीक्षा इसलिए होती है ताकि नाम स्पिरिचुअल हो जाए, ताकि आप चैंट करो वो नाम, आपको बेनिफिट हो। इस तरह कैसे? इसका नाम आज तक मेंशन नहीं हुआ ना, अभी हमने देखा भी नहीं है। एक बार ओके उनसे करवाते हैं। हिज नेम इज सुकीर्ति कृष्ण प्रभु जी। अच्छा जी। जैसे आपके भांजे जी हैं महेश अग्रवाल का नाम है मथुरा चंद्र प्रभु। जी प्रभु जी। हाँ, उनका तो पता है। इनका भी नोट कर लीजिए, इनका नाम है सुकीर्ति कृष्ण प्रभु। ओके। बड़े सुंदर नाम है प्रभु जी, सुकीर्ति, कितना सुंदर नाम है। आपको सबको ये नाम मिलेगा, ऑल ऑफ यू विल गेट द नेम्स, जी है ना। तो अभी आश्रय सेरेमनी में बैठना स्टार्ट करो, सबको ये नाम मिलेगा। अभी आश्रय सेरेमनी कब हो रही है, मैं उसका डिटेल्स देंगे आपको सबको। सोलह आप प्रभु जी पीछे पीछे प्रभु क्यों लगाते हैं? प्रभु का मतलब होता है स्वामी, स्वामी का मतलब होता है बॉस। प्रभु जी करवाओ जल्दी शुरुआत इसके दीक्षा की। 16 माला जाप जिस दिन करेगा वो प्रभु जी वास्तव में ये एक रेस्पेक्ट ऑफर करने का तरीका है। हाँ, जैसे सबको आप मेरे सब स्वामी हो, हाँ। आप मेरे स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ। ये स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसे रहते हैं। मटेरियल लाइफ में उल्टा रहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, हम्म, है ना। तो वो स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ दोनों अपोजिट है। यू आर माई बॉस, यू आर माई मास्टर, इसलिए प्रभु जी बोलते हैं। तो इसमें आश्रय सेरेमनी आ रही है। 1 माला, 4 माला, 8 माला, 12 माला, फिर 16 माला। ये 5 लेवल हैं। तो उसमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चला जाता है, पहले 1 करके फिर 4 फिर 8। वैसे एवरीबडी विल डू दिस, सबको ये आश्रय लेना है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करनी है, नहीं तो हम ऐसे ही रह जाएंगे हमेशा। तो इसका हम डिटेल देंगे आपको। ओके, सो दिस इज परफॉर्मेंस प्रभु जी स्पिरिचुअल। जल्दी, प्रभु जी जल्दी शुरुआत करवाओ इसकी। हाँ, जल्दी कराते हैं, इसी वीक में ही सारा नॉलेज देते हैं, इसी हफ्ते में। कितना टाइम लग जाता है प्रभु जी? 1 साल लग जाता है दीक्षा होते होते, पूरा लेवल्स को पार करते प्रभु करते। जी ये जो है आप प्रभु बताइए। जी ने जो है कल टेस्ट लिया था साधक साधक दीक्षा का, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, रसराज प्रभु जी ने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उसका सारा वो भेजा भी था, पूरा क्या कहते हैं सिलेबस भी भेजा था, क्वेश्चन आंसर वगैरह याद करने के लिए। भाई और है कल कि टेस्ट आलू आधा किलो भिंडी 10 तो नींबू एक पाव। हाँ जी, हाँ जी। तो इसको हम कर लेते हैं, 4 टेबल में। है ना। हाँ, कहाँ हुआ प्रभा माँ जी? ये ऑनलाइन हुआ है, ऑनलाइन ऑनलाइन अच्छा पूरा डिटेल देंगे आपको। स्कैन स्कैन करने को बोला है उन्होंने कि स्कैन अपने आंसर से, क्वेश्चन पेपर दे दिया है, उसका सिलेबस दिया था, और हाँ, उसके जो आंसर्स हैं उनको स्कैन करके प्रभु जी को भेजना है। अच्छा जी। वो ये हमने ऑनलाइन ही होता है। डिटेल देंगे आपको। हाँ, जी तो इसमें क्या होता है, आफ्टर दिस पर्टिकुलर संस्कार वन इज कॉल्ड राइटली कॉल्ड ट्वाइस बॉर्न। संस्कार होने के बाद वन बर्थ इज कैलकुलेटेड ड्यूरिंग द सीड गिविंग संस्कार, and the second birth is calculated at the time of spiritual initiation.
One who has been able to undergo such important sanskar can be called a bona fide twice born. तो इसलिए जो पहला बर्थ है वो कौन देते हैं? ये संस्कार से होता है, गर्भाधान माता संस्कार। पिता देते हैं ना पहला वर्ष। मदर फादर। दूसरा बर्थ कहाँ से होता है? गुरु देते हैं ना, गुरुमुख से। गुरु देता है, और कौन देता है साथ में? हाँ जी, गुरु होता है, साथ में कौन होता है? शिष्य होता है, बोनाफाइड ट्वाइस बॉर्न हो जाता है वो। गुरु तो फादर हुआ, माँ कौन होती है? प्रभु जी ये वेद वगैरह ये वेद, प्रभु जी, वेद। लिटरेचर सारे होता होगा, स्क्रिप्चर लिटरेचर। जो है वेद लिटरेचर प्रभु। होता होगा। वेद जो है वो मदर है, वैदिक मदर है। लिटरेचर हमारी माँ है, और गुरु हमारे फादर है, वो हमारा रियल बर्थ है। एनी क्वेश्चन?